Hello friends, how are you? Welcome to Japan Study Center. Today we are going to see the chapter of geography and what is our topic today? Petrochemical industry. The petrochemical industry is the most important industry here. Petrochemical industry is one of the fastest growing industry of India. You know that there are faster growing industry of India here, and this industry has a revolutionizing of industrial since by the providing the product which are the is a substituting their traditionally raw material like a board, glass, metal. It is a product of meet a various need of people at the low cost. Petrochemical are derived from the petroleum or natural gas. We use a variety of product from a morning till evening. Made from a petrochemicals is a toothbrushes and toothpaste, combo, hairpins, is a soap, and case, plastic masks, garment, ready case, ball point pen, detergent, electric switch, lipsticks, insecticide, bag, bed cover, and frame of some other goods made from the petrochemical. You know that there is a most important petrochemical industries here, and they're faster growing industry because there is a production of the many types of household things. Is example toothbrush, toothpaste, combo, hairpin, is a sample case, plastic mugs, garment, daddy case, ball pen, point pen, detergent, electric switches, lipstick, insecticide, bag, bed, cover, and from some of this good. There is the most important petrochemical industries here. India is a petrochemical corporation has a set up to the hugs as a petrochemical complex near of Vadodara, a producing a wide range of product besides Vadodara, Gandhar, and the Haziara and Gujarat and Nagathon is the Maharashtra or other important center of petrochemical industry. India is a self-sufficient in the production of petrochemicals here. And crude oil has a no value of unless it is a refined as a well the refining is the crude oil. Thousand of product like kerosene is a diesel, lubricant and raw material for a petrochemical industry. A drive, India has a present 80 refiners. There's the most important here 18 refiners. And the refiners are there Digbois, Bangones, Numamatis, all are the same. The Mumbai of two Maharashtra and Visakhapatnam, Andhra Pradesh and Brownies is Bihar. Akolai is a Gujarat and Mathura, UP. Panipat is a Haryana and Kochi is a Kerala. And Mangalore here, Karnataka. And the Chennai is Tamil Nadu. And this only a private oil refinery belong to BR Reliance Industry Limited is located at जामनगर गुजरात। कहते हैं अगर देखा जाए तो पेट्रो रसायन उद्योग जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। पेट्रो रसायन उद्योग जो कि कई काम में कई हर जो है घर के कामों में यूज़ आता है और कहते हैं श्रृंगार के लिए भी पेट्रो रसायन उद्योग में ही काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। भारत में पेट्रो रसायन उद्योग तेज़ी से वृद्धि करता हुआ उद्योग है और इस उद्योग ने देश के पूरे उद्योग जगत में एक क्रांति ला दी है क्योंकि इसके उत्पाद परंपरागत कच्चे माल जैसे लकड़ी, कांच एवं धातु की प्रतिस्थापित करने में अधिक सस्ते और उपयोगी पाए जाते हैं। लोगों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले इस पेट्रो रसायन के उत्पादन लोगों के सस्ते दामों पर उपलब्ध भी है और पेट्रो रसायन को जो है पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस से ही प्राप्त किया जाता है। अब देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसका जो है जर्नली देखा जाए तो पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस से ही प्राप्त किया जाता है। यदि इस बात पे हम गौर करें कि सुबह से शाम तक जो है हम पेट्रो रसायन का ही उपयोग करते हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा, चाहे आपका सुबह हो चाहे शाम हो, आप हर समय जो है पेट्रो रसायन के ही प्रोडक्ट का यूज़ करते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब सोचिएगा कि पेट्रो रसायन का उपयोग हम कहाँ करते हैं, ऐसा तो हमें कहीं दिखता नहीं है। तो आपको बता दूँ मैं कि जो आप टूथब्रश यूज़ कर रहे हो, टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो, कभी यूज़ कर रहे हो, बालों में लगाने वाले हेयर पिन यूज़ कर रहे हो, साबुन रखने के लिए डिब्बे यूज़ कर रहे हो, प्लास्टिक मग यूज़ कर रहे हो, सिंथेटिक कपड़े यूज़ कर रहे हो, रेडियो टीवी कवर, बॉल पेन, इलेक्ट्रिकल स्विच, डिटर्जेंट पाउडर, लिपस्टिक, कीड़े मारने की दवाई, प्लास्टिक थैलियाँ, फेम, गद्दे और चादर इत्यादि असंख्य वस्तु जो है पेट्रोलियम
रसायन से ही बनते हैं, पेट्रो रसायन से ही बनते हैं। तो आपको सही कहा ना कि आप सुबह से लेकर शाम तक जो वो पेट्रो रसायन का ही उत्पादों का उपयोग करते हो, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्यों नहीं बन जाएगा। जब कहते हैं सुबह से शाम तक हम इसी का उपयोग करते हैं, तो ये जो है इंडस्ट्रीज काफ़ी प्रोग्रेसिव हो सकता है और आने वाला समय में इसका और भी महत्व बढ़ने वाला है। कहते हैं भारत पेट्रो रसायन निगम ने जो है बड़ोदरा यानी गुजरात के समीप एक वृहद पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के स्थापित भी किया गया है, जिससे विभिन्न प्रकार के पदार्थ जो है बनाए जाते हैं। और बड़ोदरा के अलावा गुजरात राज्य में गंधार एवं हजीरा केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। अन्य राज्यों में महाराष्ट्र नगाथेन केंद्र में जो है पेट्रो रसायन उद्योग स्थापित भी है और भारत पेट्रो रसायन पदार्थों के निर्माण में पूर्णतः आत्मनिर्भर हो चुका है। कच्चे तेल की प्रकृति किए बगैर भी कोई खास महत्व नहीं है, परंतु जब उसे प्रकृत किया जाता है तब वह खनिज तेल पेट्रोल के रूप में बहुत ही बहुमूल्य बन जाता है। तेल के प्रक्रमण करते समय हजारों किस्म के पदार्थ मिलते हैं, जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट और वे पदार्थ जो पेट्रो रसायन उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग में लाते हैं। तो आप सोचिएगा ये सब क्या है। आपको मैं बता दूं कि जो पेट्रोल होता है, जो पेट्रोलियम होता है, वो एक कच्चे पदार्थ के रूप में होता है और उसमें सारे मटेरियल मिलता है। ठीक है, इसको अगर आप किसी क्लास में पढ़े हो तो उसको इस प्रोसीजर को हम आश्वन विधि कहते हैं। क्या कहते हैं? आश्वन विधि। आश्वन विधि में जब हम पेट्रोल को डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट मटेरियल्स को इकट्ठा करते हैं। अगर आसवन विधि नहीं है तो नेट पे सर्च करके देखिए, आपको आसवन विधि का डायग्राम अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो इसका यही है। तो ये सारे जो है हमें पेट्रोल से ही मिलते हैं और पेट्रोल को जो आसवन विधि में रखा जाता है, जब इसको प्यूरिफायर की जाती है तो सबसे पहले मिट्टी तेल का निर्माण होता है, फिर पेट्रोल और डीजल का होता है, फिर लुब्रिकेंट का होता है। उसके पश्चात जो बचता है उसको पेट्रो रसायन उद्योग में कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। जो अंतिम प्रोडक्ट होता है वो कोल टार होता है, जो रोडों को बनाने में उपयोग किया जाता है। तो आप समझ सकते हो कि पेट्रोल का कितना महत्वपूर्ण उपयोग है हमारे जीवन के चर्या और कार्य करने में। भारत में इस समय जो है 18 तेल परिक्रमणशालाएँ बनाए गए हैं, यानी भारत में अब तक जो बन चुके हैं 18 तेल परिक्रमणशालाएँ बनाए गए हैं। और इस परिक्रमणशालाओं की जो अव्यवस्थित इस प्रकार है। सबसे पहले तो है डिगबोई में बनाई गई है, उसके बेगाई गामा में, नूना माटी तीनों असम राज्य में ही स्थित है। मुंबई महाराष्ट्र में 2 इकाई हैं। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में एक लगाई गई है। बरौनी बिहार राज्य में भी एक लगाया गया है। कलाली गुजरात में भी लगाया गया है। मथुरा उत्तर प्रदेश में भी इसकी स्थापना की गई है। इवन कि पानीपत हरियाणा में भी इसकी एक लगाई गई है और कोची केरल में भी, बेंगलोर कर्नाटक और चेन्नई तमिलनाडु में भी इसके लगाए गए। टोटल 18 तेल परिक्रमणशालाएँ लगाए गए हैं। कहते हैं जवाहरनगर गुजरात में स्थित परिक्रमणशाला एकमात्र संयंत्र है जो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रसायन जो है के अंतर्गत कौन जो है निजी है। सिर्फ एक ही निजी, 18 में से सिर्फ एक ही निजी है जो कि जवाहरनगर गुजरात में लगाई गई है। और वो भी कौन सी कंपनी है? रिलायंस उद्योग लिमिटेड द्वारा लगाया गया है, यानी रिलायंस ने ही निजी कंपनी स्थापित किया है गुजरात में।